Now, students, that is question number 16 of this exercise 6.3. All questions are different from here. So that tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at points x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. So that to so tangents to above curve at x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. Okay, पैरेलल. हमें ये पैरेलल शो करना है. That's a very easy. See its proof. पहले आप डिफरेंशिएट करो dy by dx इस कर्व को, तो वी हैव 21x स्क्वायर. ओके, नाउ फाइंड आउट करो dy by dx at x is equal to 2. That will be 21 2 square, that is 4 into 21, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, and dy by dx at x is equal to minus 2. You can say that is 21 minus 2 square, that is also same 84. That is dy by dx at x is equal to 2 is same as dy by dx at x is equal to minus 2. अच्छा ये क्या है? That is the slope of tangent at x is equal to 2 and that is the slope of tangent at x is equal to minus 2. और दोनों के स्लोप सेम है. टू लाइंस का स्लोप सेम कब होगा? या तो वो टू डिफरेंट लाइंस हैं ही नहीं, या फिर वो लाइंस पैरेलल. तो आप देखो ये डिफरेंट लाइंस हैं. क्यों? क्योंकि पॉइंट्स दो अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं. तो डिफरेंट लाइंस है, इसका मतलब कि ये सेम तो है, सेम लाइन है नहीं. इसका मतलब चूंकि स्लोप उनका सेम है इसलिए वो पैरेलल लाइंस है. क्लियरली tangents at x is equal to 2 and x is equal to minus 2 to the given curve are parallel. Okay, so that is the proof of question number 16. Now I am going to solve next question. Question number 17. Read this question. Question number 17 is find the points on the curve y is equal to x cube. Find the points on the curve y is equal to x cube. Okay, condition is at which the slope of tangent is equal to y coordinate of the point. At which the slope of the tangent is equal to y coordinate. So let the required point, required point is p x1 y1. Clearly this x1 y1 lies on this first curve, so clearly from here y1 is equal to x1 cube, that is second. Now differentiate first with respect to x. What we have dy by dx is equal to 3x square. So dy by dx at this point p x1 y1 will be equal to what? 3x1 square. अब ये क्या है? That is the slope. According to the question, slope of tangent at p x1 y1
is equal to its y coordinate. Its y coordinate is y1. Okay, y coordinate. Clearly from here what we have, ये देखो ये जो हमने स्लोप फाइंड आउट किया, दिस वन दैट इज 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर, यही तो है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, that will be equal to y1. From second you can see 3x1 square is equal to y1 is x1 cube. This is from second, क्योंकि y1 क्या है, y1 is x1 cube. तो इसको अगर इस साइड शिफ्ट कर दें, we have 3x1 square minus x1 cube is equal to 0. So from here x1 square is common, we have 3 minus x1 is equal to 0. इसको हम सॉल्व करें तो x1 मिलेगा 0, इससे x1 इज इक्वल टू 0, और यहां से मिलेगा x1 इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स पे y1 क्या होगा. सो फ्रॉम सेकेंड when x1 is equal to 2, when x1 is equal to 0, x1 is equal to 0 पुट कर लीजिए यहाँ पे, y1 is equal to 0, y1 is equal to 0, and when x1 is equal to 3, y1 is equal to, अब पुट कर लो, 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27. सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, सो पॉइंट से पूछ रहा था, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, आप चेक कर सकते हो, 0 0 0 0 एंड 3,27. आप आंसर चेक कर लो, ये करेक्ट है कि नहीं. करेक्ट है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज 0 0 एंड 3,27. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दैट्स आल्सो गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. सो रीड एवरीवन रीड क्वेश्चन नंबर 18. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं. सेम टाइप का होगा, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा उसे. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x to the power of 5. Find all the points at which the tangent passes through the origin. All that points at which the tangent, जैसे सपोज कर लो कि ये कर्व है, दिस वन, हमें नहीं पता कि ये इसी का कर्व है कि नहीं, लेकिन यहाँ कोई पॉइंट है p x1 y1, जहां पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो ओरिजिन से पास होता है. कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से. ओके, तो इसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट क्या होगा, या ऐसे कई पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो पॉइंट्स क्या होंगे. ये आपका कर्व है y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5. हमें नहीं पता कि ये यही इसी का कर्व है कि नहीं. मैं आपको रफली एक डायग्राम बना के दिखाया हूं कि ये वो कर्व है, और आपसे कह रहा है कि इस कर्व पे उन सारे पॉइंट्स को बताइए जिन पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो, मतलब ओरिजिन से पास हो. ठीक है, तो आप देखो इस टेंजेंट का स्लोप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें निकालना होगा, और इस टेंजेंट का स्लोप 2 पॉइंट्स अगर किसी लाइन पे गिवन हो तो टेंजेंट्स का स्लोप क्या होता है वो हम लोग निकालते हैं. इक्वेशन का उस लाइन का स्लोप क्या होता है हमें पता है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2.
तो उस हिसाब से हमको इसे सॉल्व करना होगा। तो सपोज कर लो द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x1 y1। जाहिर सी बात है ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्लियरली, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, दैट इज सेकेंड। नाउ हमें टेंजेंट का स्लोप एट P फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1 to the curve first will be given by dy by dx at P। तो dy by dx के लिए आपको इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, ओके, एट पॉइंट P, ओके। And according to the question, this tangent is passes through origin मतलब 0 0 से, ओके। क्लियरली ये जो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 आएगा, ये P x1 y1 है तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 ही आना है, ठीक है। ये जो होगा, अब इस देखो इस टेंजेंट पे 2 पॉइंट्स P x1 y1 और ओरिजिन है, तो किसी लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 given हो, then how can you find out the slope of that line? That is y2 minus y1 means y1 minus 0 upon x2 minus x1 means x1 minus 0, ये होगा, ओके। तो यहां से इसको इस साइड शिफ्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिस y1, ओके। और आप देखो y1 इज इक्वल टू क्या है फ्रॉम सेकेंड, 4x1 क्यूब, दैट विल बी 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, दैट कम्स फ्रॉम सेकेंड। ये पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो इन दोनों को इस साइड शिफ्ट कर दें, तो 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब, इट विल बिकम 8x1 क्यूब एंड माइनस 10x1 टू द पावर 5, और ये ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड, सो प्लस 2x1 टू द पावर 5, दैट विल बी माइनस 8x1 to the power 5, that will be equal to 0. Then from here you can see 8x1 cube is common, we have 1 minus x1 square equals to 0. So from here जब इसको सॉल्व करोगे तो x1 is equal to 0 आएगा, और यहां से x1 देखो x1 square is equal to 1 आएगा, x1 square is equal to 1, तो x1 is equal to प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यहां से आपको मिलेगा x1 is equal to प्लस माइनस 1, और यहां से मिल जाएगा x1 is equal to 0, और ये इसमें पुट कर देंगे सेकेंड में। सो फ्रॉम सेकेंड when x1 is equal to 0 plus 1 minus 1, then y1 will be equal to, अब इसमें पुट कर लो, इसमें तो जब 0 पुट करोगे तो y1 will be 0, जब 1 पुट करोगे तो ये 4 minus 2 2, और जब माइनस 1 पुट करोगे तो देखो माइनस 1 ये माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 1 पुट करोगे तो ये माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2 आएगा। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर आप देखो यहां मैं लिख रहा हूं 0 के साथ 0, दैट विल बी 0 0, 1 के साथ 2 1 comma 2, and minus 1 के साथ minus 2 minus 1 comma minus 2. These are the required points. These are the 3 points on this curve at which when we draw the tangents, that tangents are passes through the origin. Okay, you can check your answer that question number 18 are correct or not. 0 0 1 2 minus 1 minus 2, that's correct. Okay, now
क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक तरह से मैंने आपको बता दिया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 ही है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 अब आप पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए एम स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, question number 20 is find the equation of normal at point, equation of normal find out करना है at point am square am cube, curve is ay square is equal to x cube at am square am cube. That's a very easy question. आप देखो पॉइंट हमें गिवन है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सब सेम टाइप के ही हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट एट p x माइनस x1। क्लियरली आप देखो y1, this one is y1, this one is x1 is given, means y minus this am cube is equal to minus वन अपॉन ये dy by dx जो भी आएगा इसको हमें निकालना पड़ेगा x माइनस x1 इज am स्क्वायर। तो आप देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy by dx एट p। तो पहले तो डिफरेंशिएट करो इसे, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ay dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x. So from here dy by dx is equal to 3x square upon 2ay. Then dy by dx at this point p means x के प्लेस पे आप पुट करोगे am स्क्वायर, तो 3am स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2ay मीन्स am क्यूब। तो यहां से आप देखो ये क्या आ गया क्लियरली, that will dy by dx at p becomes, आप देखो ये a स्क्वायर आएगा और यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे m टू द पावर 4 आएगा और यहाँ m क्यूब है, तो m क्यूब m टू द पावर 4 को कैंसिल करेगा, m बचेगा। तो क्या आ जाएगा 3/2 m। ओके, that is 3/2 m, a स्क्वायर कैंसिल, m टू द पावर 4 अपॉन m क्यूब इज m। तो यहाँ पे dy by dx at p is 3/2 m आया, यहाँ पे पुट कर दो आप 3/2 m। इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो आप, सिंपल हो जाएगा। तो 3m यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 3my माइनस 3am टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। ओके, तो क्लियर है? इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए और चेक कर लीजिए आंसर करेक्ट है कि नहीं। दैट विल बी 2x प्लस 3my
इज इक्वल टू 2am² प्लस 3am⁴। चेक कीजिए आंसर यही आना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 6.3। 6.3 क्वेश्चन नंबर 20, 2x प्लस 3my माइनस am² कॉमन कर सकते हैं, इट विल बिकम 2 प्लस 3m²। करेक्ट है, दैट्स अ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो निकाल करके और ये जो लाइन गिवन है उसके स्लोप के इक्वल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है ये। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 22 आप पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट 80² टू 80। सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 22 इज ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। Now question number 23. I am going to solve question number 23 now. Question number 23. That's a very good question. Question number 23. Prove that the cos x is equal to y² and xy is equal to k cuts at right angle first and second cuts at right angle if 8k² इज इक्वल टू 1। टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, देखो मैं यहां पे आपको नोट करके लिखवा दूं, सच टाइप ऑफ कर्व्स which intersect each other at right angle called orthogonal curves। अब देखो, लेकिन अब ये आप कहोगे कि टू कर्व्स के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, जब टू कर्व्स एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे हो, है ना, ये देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट P है, इस पे कट कर रहा है, ये P है, x1 y1 इस पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इन कर्व्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लो कि ये C1 है और ये C1 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये कर्व C2 है, इस पे हमने ये C2 पे टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और ये आपका C1 पे टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ओके, ये देखो, ये जो टेंजेंट है वो C2 पे टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है वो C1 पे टेंजेंट है। अगर इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो कर्व्स हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड सच टाइप ऑफ कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स, ओके, द कर्व्स are called orthogonal curves if tangents at their intersection point tangents at their intersection point are at
राइट एंगल। ओके, मैंने आपको ये फिगर बना के बता दिया। ये इस केस में ये जो कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो इसी में ये पूछ रहा है कि ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं, ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल तब होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना होगा, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट्स का स्लोप निकालेंगे। और टेंजेंट्स चूंकि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि कट्स एट राइट एंगल, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए, और वो कंडीशन लगा के हम देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालें, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना होगा। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो फ्रॉम सेकंड हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। फ्रॉम सेकंड व्हाट वी हैव, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो फर्स्ट से आप देखो वाई स्क्वायर x गिवन है, तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के प्लेस पे x रख दो इज इक्वल टू के स्क्वायर। दिस इज कम्स फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां से ये x क्यूब हो गया इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो गया k टू द पावर 2/3। तो x की वैल्यू मिल गई, किसी एक में पुट कर दीजिए। सो फ्रॉम सेकेंड ही अगर हम फाइंड आउट करें, फ्रॉम सेकेंड y इज इक्वल टू क्या आएगा, k अपॉन x मीन्स k अपॉन, और x क्या है, k टू द पावर 2/3 मीन्स क्या हो जाएगा, ये k नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर गया तो 1 माइनस 2/3 दैट इज k टू द पावर 1/3, k टू द पावर 1/3 मीन्स ये हो गया x और ये हो गया y। इसका मतलब कि बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, अब ये मैं मिटा देता हूं, ये दैट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप पॉज करके और नोट कर लीजिएगा कि टू कर्व्स के बीच में एंगल क्या होता है। वो कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दोनों कर्व्स पे, और उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल फाइंड आउट होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ द कर्व्स। अगर वो एंगल 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि कर्व्स ऑर्थोगोनल कर्व्स है, और उसी के बारे में बात हो रही है। तो क्लियरली यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली above curves intersect at point P, x is k to the power 2/3, y is k to the power 1/3, इस पॉइंट पे। अब दोनों कर्व्स पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व फर्स्ट एट P, जहां P है, विल बी, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx एट P, ये फर्स्ट के लिए है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा, ये अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि एक साथ नहीं हो पाएगा। चलिए, तो फर्स्ट को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। पॉइंट मैंने लिख ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटा सकता हूं मैं। देखिए, नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x. What we have 1 x का डिफरेंशिएशन, and that is 2y dy/dx. So from here dy/dx is equal to what, 1/2y, that is dy/dx at p is, अब यहाँ पर 1/2y, y के प्लेस पे k to the power 1/3, that is first, say m1, okay, say m1, and differentiate second
विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी हैव, इसको डिफरेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड dy by dx प्लस सेकेंड differentiation of first, that is constant differentiation, its differentiation is 0. Then from here dy by dx is minus y upon x. So from here dy by dx at p क्या हो जाएगा, माइनस y के प्लेस पे आप पुट कर लोगे, y के प्लेस पे k to the power 1/3, k to the power 1/3 अपॉन x के प्लेस पे पुट करोगे k to the power 2/3, k to the power 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन k to the power 1/3, यही होगा। सो दैट इज m2 सेकेंड। देखो ये क्या है, ये है फर्स्ट कर्व पे टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट P, और ये है सेकेंड कर्व पे टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट P। तो अगर ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल है, मतलब इन दोनों कर्व्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो यही हमको प्रूफ करना है, ये ध्यान में रखिएगा। 8k² इज इक्वल टू 1, मैं इसे मिटा देता हूं। So here we can write that the given curves intersect at right angle only when m1 into m2 is equal to -1. That is m1 क्या है, आप देखो m1 is 1/2 k to the power 1/3, m2 क्या है आप देखो -1/k to the power 1/3, and that should be equal to -1, that should be equal to -1। तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, +1 आ जाएगा। आप देखो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये पूरा इस साइड शिफ्ट कर दे तो 1 इज इक्वल टू 2k to the power, ये 1/3 + 1/3 2/3। ओके, अब दोनों साइड में आप 3 पावर रेज कर दीजिए, दोनों साइड में रेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड में सेम पावर हम रेज कर सकते हैं, तो आप रेज कर लीजिए। तो ये 1 क्यूब कर लो और इधर 2k to the power 2/3 क्यूब कर लो, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब इज 1 और ये 2 क्यूब इज 8 और ये k to the power 2/3 into 3 हो जाएगा, तो k²। यही आपको प्रूफ करना था, आप चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23 था, 8k² इज इक्वल टू 1, 8k² इज इक्वल